Hello everyone and welcome to the session. So guys, continuing the same series for RBI Grade B and NABARD Grade A for English section. Now we are coming up with our third lecture for your preparation for 2024 exam, and in this lecture we'll be covering some practice questions for tenses as well as verbs. So do make use of this session, and I'm sure this will help you in your journey of your preparation for this exam. So guys, before we go any further, don't forget to like the session, don't forget to subscribe to our channel if you're here for the first time, and if you need the PDFs of these sessions, you can join our Telegram group, the link for which has been given in the description of the video. So guys, let's start with the session. But guys, before we go any further, let me tell you about the uh, crash course and the quick revision batch that we have launched for RBI and NABARD. So let me just show you how to, how to actually go, how to go check him out. So guys, when you're on your browser, if you just type edutab.co.in, so just type edutab.co.in and this will be the landing page for you. So on the top you can see exams, courses, free material. Now in courses, when you look at RBI grade B or NABARD grade A, let's see for RBI grade B, when you click on this you will see all the courses that we are offering you for RBI preparation. Now guys, as considering this is the last leg of your preparation, so we have recently launched a quick revision batch where you will get live classes, current affairs, chapter wise test, sectional test. Along with that, we also have a comprehensive course for phase 1 and phase 2 by the name of live crash course. Now in this course also we are providing you live classes, summary sheets, mind maps, and mock tests. And guys, we are offering flat 60% off on this amount, and we are offering flat 61% on this amount. So go check out these courses guys, and there is also a special test series. Again, we are offering 15% off on this in this test series. So go check out these courses, go check out the deliverables, and they'll help you in your preparation and in your journey ahead, right? All right guys, so let's start with the lecture for today. I'll like last session guys, we'll have some practice questions to discuss now, and we'll see what could be the right solution for these questions. तो शुरू करते हैं guys. सबसे पहले हमारे पास tenses के questions हैं, तो एक एक करके हम सारे question discuss करेंगे, and then we'll see what could be the solution for this. So what you can do is you can pause the video here, you can look at the questions first, and then after you've solved the questions, then you can hear my explanation for the questions. तो यू कैन डू दैट. तो आप अपनी वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और आप एक बार अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टेंसेस एंड वर्ब्स. तो शुरू करते हैं गाइस. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, he told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason. गाइस याद रखना, पास्ट में जब भी आपको दो सेंटेंसेस मिलते हैं, अगर आपको मतलब पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हैं और वो एक सेंटेंस में आपको मिलता है, तो याद रखना गाइस, जो एक्शन ज्यादा पहले हुआ है, जो ज्यादा पास्ट में हुआ है, उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है. तो ही टोल्ड मी, देखो ही टोल्ड मी मतलब उसने मुझे बताया था. और क्या बताया था कि उसने अपने सुपीरियर को एक चिट्ठी लिखी थी, तो मतलब बताने से पहले चिट्ठी लिखी होगी, राइट? तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है पास्ट में? चिट्ठी लिखना, लेटर लिखना, राइट? सो वो हमें किस में रखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में. तो यहाँ पे ही रोट नहीं, क्या आएगा? ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज सुपीरियर. तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन. ठीक है, ऐसे ऐसे गलतियां एग्जाम में आपको ट्रैक करनी आनी चाहिए. टेंसेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है गाइस समझना, इनके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब ये चीज़ मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ यहाँ पे, यही चीज़ जब मैं आपको लेक्चर में कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ तो इट इज़ फेयरली क्लियर टू अंडरस्टैंड ये क्यों होता है. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम वर्किंग एट माय प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वाज बोर्न टू माय ब्रदर. सिंस से अगर वो टाइम फ्रेम दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि जब से मेरे भाई को बेटा हुआ है तब से मैं इस जॉब पे काम कर रहा हूँ. तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है. तो आई एम नहीं, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब since the day a son was born to my brother. Next guys, after Ravi read the magazines and newspapers and watched TV program, he decided to go out and meet some old friends. वही पहले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है गाइस. पास्ट में अगर आपको दो एक्शंस मिलते हैं, जो ज्यादा पास्ट में होगा वो पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा. तो क्या कह रहे हैं कि मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और टीवी देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो दोस्तों से मिलने जाएगा. तो बाद में डिसाइड किया दोस्तों से मिलने जाना, पहले क्या किया उसने? न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना. तो जो पहले हुआ है उसको किस में रखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में. तो यहाँ पे क्या रहेगा? आफ्टर रवि
had read the magazines and newspapers and watched TV program, he decided to go out and meet some old friends. तो यहाँ पे गलती बी पार्ट में मानी जाएगी, इज नॉट इन ए पार्ट, क्योंकि देखो ए पार्ट जहाँ तक था उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। कमी किस में थी? जहाँ से बी पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग थी। तो कभी आपको से बॉर्डर पे मिले ना, तो हमेशा याद रखना जिस पार्ट से वो मिसिंग होता है उस पार्ट को एरनेस माना जाता है। तो बी इज द एरनेस पार्ट है। नेक्स्ट गाइस, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ he would have worked harder and secured higher marks in the university examination। ये कंडीशनल सेंटेंस है गाइस, और कंडीशनल सेंटेंसेस में याद रखना कभी भी दोनों तरफ वुड हैव यूज नहीं किया जाता। इसमें कंडीशन क्या बनती है? इफ वाला जो क्लॉज होता है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड हैव प्लस V3 होता है। जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम। तो इफ़ यू वुड, अब ऐसे नहीं, दोनों तरफ वुड हैव कभी भी नहीं आता कि इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम, गलत होता है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच if he would have worked, nahi, if he had worked harder and secured higher marks in the university examination। तो इसमें you would have worked की जगह had worked harder आएगा। नेक्स्ट गाइस, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। अब गाइस ये वही गलती है जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में आना चाहिए। अब सुनने में ठीक लग रहा है बेशक सेंटेंस आपको, लेकिन गलती कहाँ है? देखो गाइस, दिस इज नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, नॉर्मली जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तब मैं ऐसे बोलता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो तब मैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाता हूँ, व्हाट इज योर नेम। लेकिन आई टोल्ड हिम माई नेम इज दिस, या आई टोल्ड हिम इज माई नेम दिस, तो जब आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं रखी जाती। तो यहाँ पे क्या आएगा? द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि उस अजनबी ने छोटी सी लड़की से क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब वो सवाल नहीं पूछ रहा मैं आपसे, देखो पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम नहीं होगा, क्या होगा? अब ये सेंटेंस भी पास्ट में है वैसे भी। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वाज, ये बनता है यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल what her name was, ये बनेगा sentence। next question guys, when the doctor found that the player has taken prohibited medicines he reported the matter to the team manager। गलती गाइस देखना, when the doctor found, सारा sentence past में चल रहा है, he reported the matter, तो यहाँ पे has taken present perfect कैसे आ जाएगा? तो अब ये वही वाली चीज़ है, जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है कि जब डॉक्टर को पता चला, क्या पता चला कि उसने प्रोहिबिटेड मेडिसिन ली हैं, तो मेडिसिन उसने पहले ली होंगी और पता बाद में चला होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? द प्लेयर had taken prohibited medicines। So when the doctor found that the player had taken prohibited medicines, he reported the matter to the team manager। Next, as soon as the clock strike 5, they put down their tools and off they go। as soon as the clock strike नहीं, clock singular है तो क्या आएगा गाइस? दे। as soon as the clock strikes 5, तो दे यहाँ पे put down शायद मिसिंग हो गया, they put down their tools and off they go। so as soon as the clock strikes 5 आएगा यहाँ पे। Next guys, it had been our custom from immemorial time to be hospitable to those who come to our doors। it had been, क्या हमारा अब ये रिवाज नहीं रहा है या अभी भी है? तो जो अभी भी है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं गाइस। तो इट हैज़ बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आई आस्क्ड इफ शी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। अब ये देखोगे सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, आस्क्ड, सेड। तो आई आस्क्ड इफ शी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर या इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर? आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस, कि मैंने उससे पूछा कि उसने हर जगह देख लिया है क्या, और उसने जवाब दिया कि हाँ मैंने देख लिया था। तो आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर, हैज प्रेजेंट में होता है। नेक्स्ट केस, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। द टीचर रिमार्क्ड दैट they all had done it they all had done it very badly। हाँ ठीक, नो एरर है इसमें गाइस, ठीक है, कोई गलती नहीं है, रिमार्क ठीक है, पास्ट में चल रहा है। हैड डन इट वेरी बैडली, तो नो एरर इन द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एज ही डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड ही वाज टेरिफाइड टू सी दैट द वाटर वाज ड्रेन्ड फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट। अब एक बार पहले इसको पॉज करके वीडियो को एक बार अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर देखना इसका सॉल्यूशन गाइस। तो इसमें क्या गलती थी गाइस कि जैसे ही वो स्प्रिंग बोर्ड से कूदा, वो ये देख के हैरान रह गया कि पूल में से पानी एक रात पहले ही निकाला जा चुका था। So he was terrified to see that the water was drained, yeah, the water had been drained।
अब वॉज ड्रेन्ड मतलब पानी ने कुछ किया था लेकिन पानी किसी और के द्वारा निकाला गया होगा, तो दिस इज अ पैसिव सेंटेंस. तो एज ही डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड ही वाज टेरिफाइड टू सी दैट द वाटर हैड बीन ड्रेन्ड फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट. Next, as I am suffering from fever since morning, I shall not be able to attend the function you are going to organize this evening. तो guys, since morning, सुबह से मैं बीमार हूँ, तो as I am नहीं, as I have been. तो एज आई हैव बीन सफरिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा ये. तो एज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवनिंग. तो यहाँ पे ए पार्ट में गलती है. नेक्स्ट, शी विशेज that she has studied literature instead of history when she was in college. She wishes, वो काश वो सोचती है कि काश उसने हिस्ट्री की जगह लिटरेचर पढ़ लिया होता अगर वो जब वो कॉलेज में थी. तो she wishes that she has studied या she had studied literature. अब पास्ट की बात कर रही है तो फिर टेंस भी हमें पास्ट में रखना पड़ेगा. तो she wishes that she had studied literature instead of history when she was in कॉलेज, जब वो कॉलेज में थी तब की बात कर रही है वो. नेक्स्ट गाइज, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन. अब ये कंफ्यूजिंग लगा होगा, शायद नो एरर लगा होगा इसमें आपको, बट गाइज गलती क्या होती है इसमें गाइज याद रखना. फ्लोन जो होती है ना गाइज, फ्लोन वो फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. ठीक है, तो उड़ने के लिए फ्लोन यूज किया जाता है लेकिन पानी उड़ता नहीं है. ठीक है, मच वाटर हैज फ्लोन नहीं, मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज सिंस देन. पानी बहता है, तो फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होती है, जबकि फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. तो यहाँ पे पानी है तो बहने की बात हो रही है, और ये बहुत बहुत कॉमन एक कहावत भी है कि भाई उस बात को तो बीते बहुत वक्त हो चुका है. उसको इंग्लिश में एक प्रोवर्ब से कहा जाता है कि मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज सिंस देन, कि तब से लेके अब तक तो बहुत पानी बह चुका है, मतलब बहुत टाइम हो चुका है, इस सेंस में बोलते हैं. तो मच वाटर हैज फ्लोड होता है. तो वर्ब की फॉर्म्स याद होना जरूरी होती है गाइस, ये पता होनी चाहिए. जैसे अगला क्वेश्चन देखना गाइस, आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स या आई डू नॉट विश टू रेज. राइज होता है गाइस उगना, रेज होता है जगाना या उठाना. तो आई डू नॉट विश टू रेज फॉल्स होप्स, के मैं झूठी उम्मीदें नहीं जगाना चाहता, नहीं बांधना चाहता. तो राइज उगना होता है, राइज रोज राइजन, जबकि राइज रेज रेज्ड. ठीक है, तो रेज्ड जो होते हैं रेज, रेज रेज रेज्ड, तो रेज की जो फॉर्म होती है रेज, रेज्ड, रेज्ड. तो आई डू नॉट विश टू रेज, नॉट राइज फॉल्स होप्स. अब नेक्स्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है गाइस, अब देखना एक बार इनको सॉल्व करके और फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझना. भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन विल सेट या बिफोर द सन सेट्स. अब मन कर रहा होगा विल सेट के, जब तक सूरज छुपेगा तब तक भावना घर पहुंच चुकी होगी. तो भावना विल हैव रीच्ड होम, बट याद रखना गाइस यहाँ पे बिफोर द सन विल सेट नहीं, बिफोर द सन सेट्स आता है, क्योंकि जब हम फ्यूचर में पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है गाइस. तो भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स. अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट. हैव गॉन तो प्रेजेंट में आ जाएगा. वेंट टू द सिनेमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो अजीत एंड रेखा वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट. इट डैश फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स टाइम मिल रहा है, तो इट इज रेनिंग नहीं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स, के 5 घंटे से बारिश हो रही है. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है गाइस. नेक्स्ट 5 + 5 मेक 10 या मेक्स 10. गाइस याद रखना, दो नाउन्स को मैंने कल पिछले लेक्चर में भी बताया था, दो नाउन्स को सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ एक कंजंक्शन के पास होती है, और वो कौन सा होता है, एंड. अब यहाँ पे एंड नहीं है, तो 5 + 5 1 प्लस मतलब दो सब्जेक्ट नहीं बने, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, मेक्स. देखो ये होता गाइस 5 × 5 हम क्या बोलते हैं, इज 25. 5 × 5 इज 25. 5 एडेड इन 5 इज 10. ठीक है, 5 + 5 इज 10. 5 लेकिन अगर आप बोलते हो ना 5 & 5, तब ये बनता जाके R10. तो सिर्फ एंड के साथ आप दोनों को सब्जेक्ट बना के प्लूरल कर सकते हो. एंड के अलावा और किसी भी कंजंक्शन को याद रखना गाइस, या किसी भी वर्ड के साथ आप दो नाउन्स को सब्जेक्ट नहीं बना सकते. फिर हमें फर्स्ट नाउन को देख के वर्ब डिसाइड करनी होती है, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर. 5 + 5 मेक्स 10. नेक्स्ट गाइस, माई एल्डर डॉटर डैश बॉर्न इन 2000. तो बहुत सिंपल था, माई एल्डर डॉटर वॉज बॉर्न इन 2002, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कुछ और एरर देखते हैं सेंटेंस एरर डिटेक्शन वाले. अब ये कुछ आपके इस पे थे गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस पे क्वेश्चन थे. इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड. इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, इफ वाले क्लॉज में हैड + V3. इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट या शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड.
इस साइड जो आपको मेन क्लॉज रहता है ना उसमें आता है वुड हैव प्लस V3। तो इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती तो शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, कि उसको जो वो जॉब चाहती है वो मिल गई होती। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। अब यही गलती गाइज, अब हैड आई रियलाइज ये भी कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता है तो आई वुड टेक अ टैक्सी या आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। तो अब आएगा गाइज आपका would have plus V3। तो if I knew, sorry, had I realized that it was such a long way, I would have taken a taxi। के अगर मुझे पता होता इतना लंबा रास्ता है तो मैं टैक्सी लेके आ जाता। नेक्स्ट, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन बट रियली इट वाज वेरी बोरिंग। प्रिटेंड करना मतलब गाइस हाइपोथेटिकली दिखाना कि मैं वह हूँ लेकिन एक्चुअली आप उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो किसमें क्या गलती थी गाइस, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वाज इंटरेस्टेड नहीं, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड। क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में याद रखना इफ के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वर यूज करनी पड़ती है। इफ आई वर अ मिलियनेयर, इफ आई वर द बॉस, इफ आई वर इफ शी वर माई फ्रेंड, इफ इट वर अ हॉलीडे टुडे। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब हम हाइपोथेटिकल बात जब करते हैं तो हम वर से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वाज नॉट। तो गाइज ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वाज नॉट। सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है गाइज, क्या आना चाहिए यहाँ पे, इफ आई एम इल या इफ आई वाज इल। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वाज नॉट। तो ये पास्ट का टेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही विल सर्टनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। देखो गाइज याद रखना फ्यूचर टेंस में दोनों तरफ कभी विल यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ही विल सर्टनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम या इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर, यहाँ पे विल यूज नहीं किया जाएगा। तो ही विल हेल्प यू कि वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा अगर तुम उससे अच्छे से मदद मांगो तो ही विल सर्टनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम नहीं, इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ता है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सपोजिंग इफ यू हैड रेड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। गाइस याद रखना अब ये सुपरफ्लुअसनेस कभी नहीं आनी चाहिए सेंटेंस में। सपोजिंग का मतलब क्या होता है, मान लो, और इफ का मतलब भी क्या होता है, अगर। तो वो क्या बोल रहे हैं, मान लो अगर तुम, अब हिंदी में तो हम बोल देते हैं मान लो अगर तुमने ऐसा किया होता, ठीक है, अब हिंदी में तो चलता है लेकिन मान लो भी वही है, मान लो, अज्यूम कर लो। और इफ का मतलब भी क्या है, अगर ऐसा हो तो ये दोनों वर्ड्स कभी भी साथ में यूज नहीं किए जाते गाइस, याद रखना। सपो या तो क्या होता सपोजिंग यू हैड रेड द लिटरेचर, या फिर क्या होता इफ यू हैड रेड द लिटरेचर। तो दोनों वर्ड्स इकट्ठा यूज कभी नहीं किए जाते, दैट इज व्हाट मेक्स इट सुपरफ्लुअस, ठीक है, कि वो उसको सुपरफ्लुअस बना देते हैं। तो इफ के साथ हम सपोज या सपोजिंग वर्ड्स यूज नहीं करते कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हैड ही फॉलो द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव अचीव्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। अब गाइज याद रखना ये कंडीशनल सेंटेंस का है, जब हैड से सेंटेंस शुरू होता है तो समझ जाना वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो हैड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो हैड ही फॉलोड द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव अचीव्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, कि अगर उसने सही से डायरेक्शंस फॉलो की होती तो उसको सही रिजल्ट मिल गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव हर्ड द न्यूज। दोनों तरफ वुड हैव आ सकता है गाइज, नहीं, हमने क्या कहा था, इफ वाले क्लॉज में क्या आता है, हैड। तो ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज, कि अगर उसने ये न्यूज ना सुनी होती तो वो ये चिट्ठी ना लिखता। तो इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर। Next question guys, if John had told me about his situation earlier I will have given him the money but now it is too late। if John had told me about his situation earlier I will have given him या I would have given him the money। तो यहाँ पे क्या आएगा, I would have given him the money, if के साथ would had प्लस if वाले क्लॉज में had प्लस V3 और मेन क्लॉज में would have प्लस V3 आता है। तो if John had told me about his situation earlier I would have given him the money but now it is too late। नेक्स्ट, इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम। समझिएगा, इसके अगर मैं उसके जूतों में होता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं शर्म के मारे मर जाता। तो देखो जब अगर वो पास्ट के सेंस में बोलता है ना कि अगर मैं उसकी जगह रहा होता तो आई वुड डाई नहीं, आई वुड हैव डाइड विद शेम, कि मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया होता, उस सेंस में बोल रहा है वो। तो इफ आई वर इन हिज शूज, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो आई वुड हैव डाइड विद शेम। नेक्स्ट, इफ यू वुड हैव टॉयल्ड हार्ड यू वुड नॉट हैव हैड टू सफर दिस मच। ये वही वाली बात है, इस दोनों तरफ वुड हैव नहीं आ सकते। इफ वाले क्लॉज में क्या आएगा, इफ यू हैड टॉयल्ड हार्ड
यू वुड नॉट हैव हैड टू सफर दिस मच, कि अगर तुमने अच्छे से मेहनत की होती तो तुम्हें इतना मुश्किल ना झेलनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इफ ही वुड हैव डन दिस ही वुड हैव बीन रॉन्ग। सेम गलती, दोनों तरफ वुड हैव नहीं आ सकता। तो इफ ही हैड डन दिस ही वुड हैव बीन रॉन्ग, कि अगर उसने ये किया होता तो वो गलत कहलाता, उसको लोग बोलते हैं कि उसने गलत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई वुड डू दिस इफ आई वॉज यू। इफ आई वॉज यू या इफ आई वर यू, मैंने क्या कहा था गाइज, हाइपोथेटिकल बातों में हम प्रोनाउन जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रोनाउन के साथ, वो कौन सी यूज होती है, वर। तो आई वुड डू दिस, मैं ये करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, लेकिन अगर होता तो हो तो नहीं सकता, तो दिस इज इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बात, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। सो आई वुड डू दिस इफ आई वॉज यू, नहीं इफ आई वर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही मस्ट लुक इन टू द मैटर लेस्ट ही विल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट। तो उसको जरूर इसमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उसको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। तो ही मस्ट लुक इन टू द मैटर लेस्ट ही विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट। अब गाइज याद रखना, लेस्ट जो वर्ड होता है, ठीक है, ये लीस्ट नहीं है, लेस्ट है। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, नहीं तो, नहीं तो वाली सेंस, जो वरना वाली सेंस होती है ना, नहीं तो ऐसा होगा या वरना ऐसा होगा। तो हमें याद रखना गाइज, ये थंब रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेस्ट वर्ड के साथ अगर कोई मोडाल यूज हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो सकता है, शुड। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको कि सर शुड का मतलब तो चाहिए नहीं होता, बट यहाँ पे ये रूल है कि लेस्ट के साथ यहाँ पे शुड यूज किया जाता है। तो ही मस्ट लुक इन टू द मैटर लेस्ट ही शुड फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट, कि उसको इसके भुगतान झेलने, इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, भुगतान भरना पड़ेगा इसका। तो ही मस्ट लुक इन टू द मैटर लेस्ट ही शुड फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हैड वी लेफ्ट अर्लियर दिस मॉर्निंग वी वुड नॉट मिस आवर ट्रेन। हैड वी लेफ्ट अर्लियर दिस मॉर्निंग वी वुड नॉट मिस, या वी वुड नॉट हैव मिस्ड। तो वी वुड नॉट हैव मिस्ड आवर ट्रेन, कि अगर हमने सुबह अच्छे से, अगर हम सुबह टाइम से निकल गए होते तो हमारी ट्रेन ना छूटी होती। तो हैड वी लेफ्ट अर्लियर दिस मॉर्निंग वी वुड नॉट हैव मिस्ड आवर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं आपके लिए आज। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, एरर डिटेक्शन भी हो गया, और आज आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप की भी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, क्वेश्चन देखना गाइज, इफ आई हैव इनफ मनी आई वुड बैकपैक अराउंड यूरोप बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ब्रोक। ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यूरोप घूमता, आराम से बैकपैकिंग करता, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ब्रोक। यस गाइज, इफ आई हैव इनफ मनी या इफ आई हैड इनफ मनी, इमेजिनरी सेंटेंसेस में क्या कंडीशन होती है गाइज, हैड यूज किया जाता है। तो देख लो ऑप्शन में किस किस में हैव है और हैड है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बनता है गाइज, और उसको पूरा पढ़ लो एक बार। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बैकपैक अराउंड यूरोप बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ब्रोक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी वुड हैव बीन हियर अर्लियर इफ शी डिड नॉट मिस द ट्रेन, कि वो जल्दी पहुंच जाती है अगर उसकी ट्रेन ना छूटी होती। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको कई बार बता दिया अभी अभी में कि इफ वाले क्लॉज में, ऐसे सेंटेंसेस में हैड के साथ V3 होता है। तो इफ शी हैड नॉट मिस द ट्रेन, तो शी वुड हैव बीन हियर अर्लियर, इफ शी डिड नॉट का हैड नॉट होना चाहिए डिड नॉट की जगह वहाँ पे। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड वी हैव आवर आंसर ऑप्शन 3, शी वुड हैव बीन हियर अर्लियर इफ शी had not missed the train. Next question guys, thank you for helping me study, if you hadn't tutored me I would fail the test। कि भाई थैंक यू मेरे को पढ़ाने के लिए, अगर तुमने ना पढ़ाया होता तो मैं फेल हो गया होता। इफ यू hadn't tutored me, had के साथ थर्ड फॉर्म ठीक है, hadn't tutored me I would fail या I would have failed। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन गाइस बड़े टिपिकल से क्वेश्चन बन जाते हैं इन पे कंडीशनल सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इफ यू हैडंट ट्यूटर्ड मी आई वुड हैव फेल्ड द टेस्ट। अब देख लो वुड हैव फेल्ड किस में है, इस वुड हैव फेल्ड इसमें है, वुड फेल, वुड हैव फेल्ड एक इसमें भी है। तो अपने बचते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी। अब दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, इफ यू हैडंट ट्यूटर्ड मी, और नीचे दिया हो इफ यू डिडंट ट्यूटर्ड मी, डिडंट के बाद ट्यूटर्ड आ ही नहीं सकता, तो दिस इज इनकरेक्ट एंड यू हैव योर आंसर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी स्टडी, इफ यू हैडंट ट्यूटर्ड मी आई वुड हैव फेल्ड द टेस्ट। Next question guys, if I exercised more I will be much healthier and I may not have so many health problems। तो वो अज्यूम कर रहे हैं चीज़, मतलब इसको ना हाइपोथेटिकल बात बोल रहा है कि अगर मैं और एक्सरसाइज करता तो मैं और हेल्दी हो जाता और मेरे को इतनी हेल्थ प्रॉब्लम ना होती। तो इफ आई एक्सरसाइज मोर आई विल बी आएगा या आई वुड बी। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा पास्ट फॉर्म यूज की जाती है गाइस। तो आई वुड बी मच हेल्थियर एंड आई माइट नॉट, मे का भी, मे की जगह भी क्या आएगा, माइट नॉट हैव सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो देख लो किस किस में विल की जगह वुड और माइट है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। वुड है और माइट है, यस, और वुड है और
यहाँ पे वुड है नहीं, तो आई थिंक एक ही आंसर बचता है अपने पास, ऑप्शन नंबर 3। इफ आई एक्सरसाइज्ड मोर आई वुड बी मच हेल्थियर एंड आई माइट नॉट हैव सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो ऑप्शन नंबर 3 is your answer. Next question, guys. It is too bad Sundar Raman is not with us. If he was here, he can translate the letter for us. He was here नहीं, if he were here. कि अगर वो यहाँ होता तो he can नहीं, he could translate the letter for us. तो अब ये देख लो was की जगह were किस किस में है। आई थिंक यहीं से आपको आपका आंसर मिल जाता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में बचता है। तो इट इज़ टू बैड सुंदर रमन इज नॉट विद अस, इफ ही वर हेयर ही कुड ट्रांसलेट द लेटर फॉर अस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइस आपके टेंसेस के और कंडीशनल सेंटेंसेस के, ठीक है। अब कुछ आपके क्वेश्चंस वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस भी देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे बनता है गाइस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, आप एक बार पॉज करके सॉल्व कर लेना, फिर आप मेरे इसको सॉल्यूशन को देखना। ईच स्टूडेंट वर गिवन अ चांस टू प्रूव हिज टैलेंट। ईच का मतलब ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था गाइस। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब हर एक, और हर एक मीन्स सिंगुलर। तो ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इनके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज होती है। तो ईच स्टूडेंट वर गिवन नहीं, वॉज गिवन अ चांस। नेक्स्ट, द जज सेड दैट द क्राइम वॉज मोटिवेटेड बाय रॉबरी एंड नॉट रेशियल prejudice. Yes guys, the judge said that the crime was motivated by robbery, and not racial prejudice. No error है इसमें guys, sentence is absolutely correct. Next question guys, she is waiting for her sister for 2 hours. अब for 2 hours दे दिया मतलब perfect continuous tense, तो she is नहीं, she has been waiting for her sister for 2 hours. Yes guys, next question, the examinee had scribbled certain things on his question paper. Had के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है guys, थर्ड फॉर्म। तो the examinee had scribbled certain things on his क्वेश्चन पेपर, ठीक है, स्क्रिबल्ड आएगा स्क्रिबल की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द पुलिस लॉब्ड 6 राउंड्स ऑफ टीयर गैस शेल्स एंड यूज्ड फोर्स टू डिस्पर्सिंग द वॉयलेंट क्राउड। गाइस याद रखना, टू के बाद हम मोस्टली कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो टू डिस्पर्सिंग द क्राउड नहीं, टू डिस्पर्स द क्राउड, ठीक है। तो द पुलिस लॉब्ड 6 राउंड्स ऑफ टीयर गैस शेल्स एंड यूज्ड फोर्स टू डिस्पर्सिंग द वॉयलेंट क्राउड नहीं, टू डिस्पर्स द वॉयलेंट क्राउड। और इस गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में एक और गलती है गाइस, अगर आप ढूंढ के मुझे बता सकते हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं किसकी ऑब्जर्वेंस बहुत अच्छी है, कौन स्टूडेंट है जो यहाँ पे गलती ढूंढ पाएगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे जो स्क्रीन पे है इसमें आपको एक और गलती मिलेगी अगर आप ढूंढ पाओ तो देखते हैं कौन ढूंढ पाता है इसमें गलती और कौन बता पाता है कि यहाँ पे सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। डिस्पर्स तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन इसमें एक और गलती भी है, वो आपको देखते हैं आपको मिलती है या नहीं मिलती है। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। चलो गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन हैव गॉन अप टू 43। द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन हैव गॉन अप। गाइज अब ये बच्चों को पता नहीं होता, द नंबर ऑफ के साथ अगर द नंबर ऑफ सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है, ठीक है। द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन हैज गॉन अप टू 43 के पुलिस स्टेशन की जो संख्या है वो बढ़ के 43 तक पहुंच चुकी है, तो हैज गॉन अप। Next guys, more than 200 members of the church participate in the event last night. Last night है तो participate होगा या participated होगा, तो it will be past indefinite participated। तो more than 200 members of the church participated in the event last night. That is the erroneous part. Next question guys, the center has not pay heed to the suggestions put forward earlier. The center has not pay heed, हैज के साथ कौन सी फॉर्म आती है इस थर्ड फॉर्म। तो द सेंटर हैज नॉट पेड हीड टू द सजेशंस पुट फॉरवर्ड अर्लियर, के सेंटर ने जो सजेशंस पहले दिए गए थे उन पे कोई ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट मंडे द सिक्योरिटी काउंसिल हैज अर्ज्ड लीबियाज इंटरिम लीडर्स टू कर प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स। वेपन्स होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, बट गलती क्या है गाइस, देखना लास्ट मंडे की बात हो रही है, मतलब पिछला हफ्ता, राइट। तो लास्ट मंडे द सिक्योरिटी काउंसिल हैज अर्ज्ड, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है? नो, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, अर्ज्ड। तो लास्ट मंडे द सिक्योरिटी काउंसिल अर्ज्ड लिबियाज इंटरिम लीडर्स टू कर्ब द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स। And last question for today guys, by the time India will achieves a better position in the world, India will be the most popular country. अब गाइज इस क्वेश्चन का आंसर
मैं चाहता हूँ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दो। सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, देखता हूँ आप कितने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझे हो, कितना अच्छे से आप पिक कर रहे हो मेरी बातों को, और कितना आप उसको फॉलो कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गलती है गाइस, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, और देखते हैं कि आप में से कितने सही आंसर करते हैं, कितने गलत आंसर करते हैं। द क्वेश्चन इज, बाय द टाइम इंडिया विल अचीव द बेटर पोजीशन इन द वर्ल्ड, इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलर कंट्री। क्या आना चाहिए गाइस यहाँ पे? गलती कहाँ पे है वो मुझे ढूंढ के बताना। यू कैन जस्ट टेल मी कि किस पार्ट में गलती है, ए बी सी या डी। जिस पार्ट में आपको गलती मिले मुझे उस पार्ट में आपको अपनी ऑप्शन, आपको ए बी सी या डी अपनी ऑप्शन मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है। और गाइज ये सेशंस कैसे लगे हैं आपको, ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर योर इनपुट एंड योर फीडबैक in the comment section of the video. And if you wish to drop us an email, you can drop us an email on this address, that is hello@edutab.co.in. And guys, if you wish to join our courses, you can always call us on this number if you have a query, which is 8146207241, or you can also drop us an email on the same email id, hello@edutab.co.in. Right. The link for our courses have been given in the description of this video as well, guys. So go check out the link, go get benefited from it. And there's a special discount going on for the last 2 days. तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आए या नहीं आ रहा है, या जो भी आ रहा है, यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स एंड क्विक रिविजन बैच टू कवर ऑल दीज विद इन 10 days। तो सिर्फ 10 दिनों में आप ये सारा कवर कर सकते हो, एंड यू कैन स्टिल फेयर वेरी वेल इन द एग्जाम, गाइज। तो हैविंग सेड दैट, गाइज, I'll take your leave for today. I'll be back with another session day after tomorrow with more practice questions for you, and I hope these sessions will help you in your preparation and in your journey ahead. So guys, having said that, thank you so much once again. Stay safe, stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, guys, I'll call it a day. I'll see you again in the next lecture. Till then, guys, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क, ठीक है? जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करना मत भूलना, एंड डू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो थैंक यू वंस अगेन, गाइस, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।